चलिए, let's check these questions. These have been given for trial balance in the last lecture. I think the first one we are already done with, right? With a change there. पहले में हमने एक चेंज किया था, एक अमाउंट मैच नहीं हो रही थी. क्या डाला था हमने? रेंट रिसीव्ड, am I right? We have put one item as the trial balance was not matching. So one item we introduced here, rent received. कितना डाला था अमाउंट? 2575 या 2875, ऐसे कुछ एडजस्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में. देखो बेटा, अमाउंट चेक करो. लास्ट क्वेश्चन में हमने एक अमाउंट ऐड किया था, फिर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया था. Rent received 2575. Yes, it is 2575. So all you can see here, rent received is an amount which we added into this question. Question itself was wrong. That is how trial balance was not matching. So this was the change there. Let's quickly go for the trial balance basics because you might have forgotten there, right? क्या क्या ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है और क्या क्या ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होता है. क्या डेबिट होता है? सबसे पहली चीज, that is all expenses and losses of the business. Second, all assets, properties and possessions of the business. And third is all personal accounts showing debit balances, जैसे कि debtors or drawings. So that is the first rule of trial balance there. On the credit side, number one is all incomes and gains of the business and all liabilities and claims on the business or all पर्सनल अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस, जैसे कि कैपिटल है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. ये अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे ना बेटा, लेजर अकाउंट, तो इसको क्लोज करते टाइम आपको बैलेंस कौन सा बताएगा? क्रेडिट बैलेंस ही बताएगा. So that is how. So let's go quickly for debit and credit for all these things. Opening stock, it is an asset and asset should be debited. बराबर है क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक asset है ना? Any type of stock is an asset. As far as categorizing is concerned, any type of stock is an asset. तो opening stock debit होता है. Wages, expenditure, charges paid to the laborers who are working in the factory. Next, carriage inward, transportation expenses on purchases of raw material, फिर से debit. Salaries, debit. Carriage outward, debit, because these are transportation expenses on sales. Discount allowed, debit. Discount received, credit, because it is a gain. Interest paid is debit. Interest received is credit. Traveling expenses debit. Advertisement is debit. Stationery debit. Office rent debit. क्योंकि ये सारे एक्सपेंडिचर है बेटा. कहां से चालू हुआ है? इंटरेस्ट पेड से. सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड उतना एक क्रेडिट हुआ, बाकी सारे एक्सपेंडिचर है. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डेबिट. कमीशन पेड डेबिट. सन्ड्री डेटर्स डेबिट. इट इज एन एसेट. डेटर्स इज अ डेबिट बैलेंस and creditor is a personal account having credit balance. तो debtors का debit, sundry creditors credit balance, purchase less returns, इसका मतलब है परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करके आपको दिया है. तो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर एनीवेज फॉर यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड. नेक्स्ट, सेल्स शुड बी क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न शुड बी डेबिटेड. ये तो मैंने आपको बोला अपोजिट. Purchase is debited, purchase return is credited. Sales is credited, sales return is debited. Next to that, closing stock, it is debit and rent received is also credit. ये debit नहीं है, ये gain है और ये credit होता है. And trial balance matches with, इसका बताइए बेटा टोटल क्या होता है? 38,200. This trial balance should match with 38,215. So ये टोटल आना चाहिए 38,215 as far as this particular sum is concerned. So done with this sum. Second sum में एक एडजस्टमेंट और थी, यहाँ पे भी ये मैच नहीं हो रहा था, तो हमने एक चीज इसमें ऐड की है जो मैंने आपके ग्रुप पे डाला. यू कैन चेक इट टुडे एंड दैट इज आई थिंक आई हैव एडेड सेल्स. क्या डाला ग्रुप पे? देखो सेल्स ही डाला. क्या नेटवर्क नहीं है? जिसको है वो देख लो. आया नहीं है? रुक जाओ, मेरे इसमें ही चेक कर लेता हूं. मैंने अभी भेजा है. इट इज सेल्स 35,350. हाँ, तुम तक पहुंचा नहीं है क्योंकि मैंने नेट बंद कर दिया था. अभी देखो आ गया होगा. सेल्स आइटम नंबर 20, 35,350. नाउ यू कैन चेक इट आउट एंड आई थिंक दैट इज मैचिंग नाउ.
मैच करो, देखो अभी सम करते हैं फटाफट और टोटल भी करते हैं। चलो शुरू करते हैं रश्मिता से। रश्मिता बोलेगी डेबिट क्रेडिट 4 आइटम को बोलेगी, फिर आगे चलते हैं। यस रश्मिता, फर्स्ट आइटम बैंक चार्जेस डेबिट। चलो जो आइटम डेबिट है उसी को टिक करता हूं, बचे वाले क्रेडिट कर देते हैं, या क्रेडिट को टिक करता हूं, क्रेडिट वाले वैसे भी कम होते हैं, है ना, तो आइडिया उल्टी करते हैं, क्रेडिट वाले टिक करते हैं, डेबिट वाले छोड़ देते हैं। तो पहला बैंक चार्जेस डेबिट है, छोड़ दिया। आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो इसको टिक करके रखता हूं। ब्रैकेट में क्रेडिट दिया, मतलब दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज देके अगर क्रेडिट बोला मतलब वो रिसीव्ड है। इन केस ऑफ यूजुअली ऑल सच हेड्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, और ब्रैकेट में क्रेडिट बोला मतलब वो रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, दैट वे अराउंड। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, सैलरीज डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस डेबिट, पोस्टेज डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, रेंट डेबिट, बैड डेट्स डेबिट। ये सारे एक्सपेंसेस बेटा, आपको लग रहा होगा सारे कैसे क्या डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद, तो उन्होंने सारे एक्सपेंडिचर ही दिए, या तो एक्सपेंडिचर मिलेंगे या तो इनकम मिलेंगे। तो इनकम में सिर्फ इंटरेस्ट है, कमीशन क्रेडिट दूसरा ही आइटम मिला अभी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, लॉस बाय फायर इज अ लॉस डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है, मिसलेनियस इनकम क्रेडिट है, डिप्रिसिएशन डेबिट, गोडाउन एक्सपेंसेस डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट एंड सेल्स इज क्रेडिट। कितने आइटम है, 5। अब करो बेटा इसका टोटल, 5 आइटम का टोटल ओरली कर लेते हैं। 1600 प्लस 1750, 17 और 16 3350, 3350 प्लस 3700 मतलब 7050, 7050 प्लस 1400 8450, 8450 और लास्ट आइटम 35350, 35 और 8 43, 400 और 300 700, 50 और 50 800, 43,800। इसका टोटल आना चाहिए 43,800। चेक करो बेटा, क्विकली चेक करो। क्रेडिट तो आ गया 43,800, डेबिट चेक करो, करो ऐड। मैं बोलता हूं फटाफट अमाउंट एंड देन यू कैन गो फॉर एडिंग इट। देखो ऐड करके देख लो। डेबिट का टोटल लिखो बेटा, मैं बोलूं एक या कर रहे हो आप बराबर? करेक्ट है, डन। चलो दोनों सब मैच कर लिया हमने, तुम वहां पे लिख लो कहीं पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में रेंट रिसीव्ड ऐड करना है जो हमने ऐड किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ऐड करना है, सेल्स। ये दोनों ऐड करोगे तो ये मैच हो जाएगा। रसीता हो गया मैच? सो कितना है? 35,350 बेटा सेल्स। आयुष, आयुष सॉरी मुझे लेट हो गया शायद मैसेज करने के लिए, इसलिए आप ऑनलाइन बैठे हो, ऑफलाइन नहीं आ पाए। इट्स ओके। मैं सोच ही रहा था कि मैंने मैसेज करना चाहिए, क्योंकि कल एकदम से चेंज हो गया। एंड दिस एंटायर वीक इट विल बी बिट फ्लक्चुएटिंग माय डियर, पार्डन मी, थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी है घर पे, तो थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है, तो ऐसा शेड्यूल हिलते रहेगा, बट विल बी इंटीमेटिंग इन एडवांस। दोपहर 2 बजे तक ही मैसेज आ जाएगा कि क्लास, अभी मेरे ख्याल से वेडनेसडे तो मैडम ही लेंगी, थर्सडे फिर से मैडम ही लेंगी, सैटरडे में फिर से लूंगा, फ्राइडे विल बी कंफर्म। तो कल परसों मैडम ही लेंगी मैथ्स का, कल और परसों पक्का है। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो इट विल बी मैथ्स ओनली। कोई चेंज हुआ परसों में चेंज होगा, कल में तो कोई चेंज नहीं होगा, हुआ तो परसों में, कल तो मैथ्स ही है पक्का। हो गया 43,800 आ रहा बेटा, ऑनलाइन सबका टैली हो गया बेटा? तनीश, ईशा, आयुष, सबका टैली हो रहा है?
ऑनलाइन भी अटेंडेंस कमी है आज, 4 लोग ही है, ठीक है चलो। इज दैट ओके? आगे चलते हैं। आई थिंक ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो भी गया होगा अगर आपने ट्राई किया है तो। नहीं ट्राई किया तो ट्राई करना चाहिए बेटा। आपके चेहरे देख के नहीं लगता आपने होमवर्क किया है। किया? मैच कर रहा है? चलो टोटल बोलो। करेक्ट, वेरी गुड। सॉरी फॉर माय अंडर एस्टिमेशन ऑफ योर्स। आपने किया ये बराबर है, 2,19,000 सही है बेटा। इसमें फिर से क्रेडिट के आइटम बोलता हूं, बाकी सारे डेबिट। क्रेडिट में क्या क्या आता है, इसमें एक बड़ी लर्निंग है। ग्रॉस प्रॉफिट इज एन आइटम ऑन क्रेडिट साइड। कैपिटल इज a liability as well as any kind of profit is a liability because of business entity concept। तो ये लाइबिलिटी है, ये आइटम गलत हुआ तो मैच ही नहीं होता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट पहला, डिस्काउंट अर्नड इज आल्सो क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड इज क्रेडिट, उसके बाद क्रेडिटर्स और कैपिटल 5 हो गए यहाँ पे। ऑन राइट हैंड साइड इट इज बिल्स पेएबल, डिविडेंड रिसीव्ड एंड बैंक लोन। डन। 8 आइटम है क्रेडिट वाले, और ये 8 का टोटल करेंगे तो 2,19,000 हो जाएगा। बाकी बचे वाला तो डेबिट का ही घराना है, तो वो डेबिट हो जाएगा बेटा, और टोटल 2,19,000। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट इनटू दिस वन? Repeating again, all expenses and losses should be debited, all assets, properties should be debited, and all personal accounts having debit balances should be debited. Now what is credited is all incomes and gains of the business, and what is credited is all liabilities and claims of the business. तो ये चीजें क्रेडिट होती है। चौथा सम देखते हैं बेटा, 8 हो गए यहाँ पे, ये 8 आइटम थे, और ये चौथा सम, ये भी मैच कर रहा है मेरे ख्याल से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्रेडिट आइटम फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्रेडिट इज सेल्स आइटम, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेस रिटर्न। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिटर्न आउटवर्ड को ही परचेस रिटर्न बुलाते हैं, और रिटर्न इनवर्ड को बुलाते हैं सेल्स रिटर्न। तो मैंने बार बार बोला है, इफ परचेस इज डेबिटेड, परचेस रिटर्न इज क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि आपने परचेस किया लेकिन वापस दिया। आपने खरीदा 2 लाख का, वापस दिया 50,000 का, तो आपने खरीदा इफेक्टिवली 1,50,000 का। तो परचेस किया 2 लाख का, परचेस रिटर्न 50,000 का, 2 लाख माइनस 50,000 कितना आता है? 1,50,000। इसलिए परचेस अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, क्योंकि अपोजिट बैलेंस हुआ। सिमिलरली सेल्स इज इनकम, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। आपने बेचा 5 लाख का, लेकिन सामने वाले ने वापस दे दिया 50,000 का, तो आपका सेल 5 लाख नहीं हुआ, 5 माइनस 50, 4,50,000। सेल्स इज ए इनकम शुड बी क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न इज अ रिडक्शन इन इनकम, हेंस इट शुड बी डेबिटेड। तो ये सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। याद रखना, अगर एग्जाम में लगता है कि गड़बड़ होता है, ध्यान में नहीं रहता, तो क्या करने का, एग्जाम में गए बराबर ऐसे कर लेने का, परचेसेस व्हाट? डेबिट, क्योंकि आपका क्या है वो एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड इज क्रेडिट। ये पहली चीज हो गई एग्जाम में कुछ देखने के पहले। फिर यहां पे लिखने का सेल्स क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, दैट इज डेबिट। बड़ा सिंपल है। ऐसे कुछ चीजें करना पड़ता है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए शुरुआत में। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं बचती है। तो ऐसा किया तो और बेटर पड़ता बेटा, बराबर है। ये चीजें बड़ी काम में आती है, क्योंकि एक आइटम हिल गया, सम गया। एक डेबिट का क्रेडिट में चला गया, मतलब डेबिट में डिफरेंस डबल हो गया और क्रेडिट में अननेसेसरी ऐड हो गया, तो प्रॉब्लम बैलेंस ही नहीं होता, मैच ही नहीं होता। सिर्फ एक आइटम से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। बोलते हैं हर चीज जरूरी होती है, उस तरह से मेरे ख्याल से 5वां उन्होंने करके दिया है। 5वां मैं निकाल देता हूं बाद में वर्ड फाइल से, ताकि पीडीएफ में भी ना रहे। 5वें में ट्रायल बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया है। क्रेडिट के आइटम ये देखो क्या है, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड एंड सेल्स। डेबिट तो सारे दे दिए, और किसी आइटम में डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो बेटा आप। एनी आइटम where you are having doubt? Any item where you are having doubt? Is that okay? No doubt? Is it clear everybody? चलो एक आखिरी सम हमें करना है। Let's see which one we can